Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing well. This is a summary video of your social studies Zoom online class. Dear students, today we will discuss your home work from home project or the second assignment of June 2021. You are having the question answers for your assignment. Your question number one is name the deserts of Pakistan. The answer is following are the names of the deserts of Pakistan, Thar Desert and Thal Desert. Then question number two, we are having name the mountain ranges of Pakistan. The names of the mountain ranges of Pakistan are following Karakoram mountain range, Hindu Kush mountain range and Himalayas mountain range. Then question number three is write a note on plateaus. This is from your book. Okay, you have to write this note from your book. That is these are the areas of flat land above the sea level. Some plateaus are fertile while others are poor land. It depends on the height and amount of rainfall, etc. Question number four, what is the cold desert called? Answer is the cold deserts are called tundra, where the climate is too cold for vegetation. These are the question answers for your work from home project, that is your second assignment. Okay, you have to do all these works neat and clean in your classwork copy. देन आफ्टर दैट यू हैव टू पेस्ट द पेज ऑफ द जियो वर्क. ठीक है, आपने जियो का जो टास्क है उसके आंसर्स फिल करके आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने सर्कल करके चूज़ करके जो है तो आपका जो वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट का पेज है वो आपने कटिंग करके अपनी सोशल स्टडी की कॉपी में पेस्ट कर देना है. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट our chapter written work in classwork copy also. This is your title page. ठीक है, ये आपका टाइटल पेज है. You have to prepare your title page like this in your copy. Okay, chapter number 1, our country in the world. Task summary is short questions are 3, long questions are 2, MCQs are 10 and map number 1. Okay, now we are having your short question number 1. In which parts of the world are there no Islamic countries? You have to make the flow sheet. ठीक है, आपने question के नीचे flow sheet बनानी है. This is your flow sheet which you can see on your screen. Now the answer is in the following parts of the world there are no Islamic countries: North America, South America, Australia, Europe, apart from a tiny state of Albania. Then short question number 2. Name the passes of the subcontinent which lead to Afghanistan, Iran and China. After the question you will have your फ्लो शीट. ठीक है, आपने क्वेश्चन के बाद नीचे फ्लो शीट बनानी है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी. एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग योर आंसर. इन द वेस्ट the Khyber and Bolan passes lead to Afghanistan and on to Iran, Central Asia and even Europe. Number 2 point is in the north, the High Khunjara Pass leads to China. Okay, dear students, this was all about your task. Now today we are going to start our new chapter, and that is your chapter number 3 and your page number is 12 of your book. The name of the chapter is Winds and Cyclones. Okay, today we are starting our new chapter and its name is Winds and Cyclones. Now the question is, what is wind? विंड इज़ द मूविंग एयर. इट कैन बी जेंटल ब्रीज और अ स्ट्रॉन्ग गेल. ठीक है, अब विंड क्या होती है? विंड जो मूविंग एयर होती है इट इज़ नोन एज विंड. ठीक है, इट कैन बी जेंटल. जेंटल मीन्स कि ये स्लो भी चल सकती है, स्लो भी होती है और हमारे पास तेज़ हवाएं भी चलती हैं. Now there is a difference between air and wind. Now what is air? Actually, air is generally the name for the mixture of the gases that makes up the earth's atmosphere. ठीक है, air क्या है? air में different gases होती हैं और जो air की जिस वक्त ये blow होती है that is called the wind. Now cyclones and the anticyclones. The cyclones are winds sometimes usually
winds usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin round and round in a spirals. ठीक है, अब winds जब चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो ज़्यादातर ये एक ही डायरेक्शन से चलती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि winds जो हैं तो स्पिन करती हैं. अब स्पिन का क्या मतलब है? स्पिन मीन्स जैसे आप लोग स्पिन बॉल करवाते हैं, ठीक है, स्पिन मीन्स गोल, ठीक है, राउंड शेप में जो है तो winds जो है तो वो मूव करने लगती हैं, एंड इवन इट मेक्स अ स्पाइरल. ठीक है, ये बिल्कुल एक गोल जो है तो दायरा बन जाता है. दैट दीज आर नोन आर साइक्लोन्स एंड द एंटी साइक्लोन्स. Okay, now the cyclones. In a cyclone, the winds spin round in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere. अब जब साइक्लोन्स आते हैं, जब साइक्लोन्स बनते हैं, हवा में साइक्लोन्स बनते हैं, तो क्या होता है? विंड जो है, हवा जो है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, वो घूमने लगती है. एंटी क्लॉकवाइज, एक हमारे पास डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और एक डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमने लगती है. कहाँ पे? इन द नदरन हेमिस्फीयर. ठीक है, जिस वक्त हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, वी हैव द इक्वेटर, इक्वेटर सेंटर में आता है, तो जितना भी हमारे पास नॉर्थ का एरिया है दैट इज़ द नदरन हेमिस्फीयर. सो when the cyclones occur, the winds spin round in an anti-clock direction in the northern hemisphere and clockwise direction in the southern hemisphere. ठीक है, लेकिन southern hemisphere में क्या है? ये हमारे पास clockwise direction में जो है तो वो spin करती है. द एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज़ लो. इस टाइम पे जो एयर का प्रेशर होता है वो अर्थ के ऊपर लो होता है, स्पेशली इन द ट्रॉपिकल सीजन्स. ट्रॉपिकल सीजन्स में क्या होता है? हमारे पास द विंड्स कैन रीच वेल ओवर 200 किलोमीटर पर आवर एंड रिजल्ट इन इमेंस डैमेज. Scientists have calculated that even a medium strength cyclone has the power of 500,000 nuclear bombs. ठीक है, साइक्लोन्स इतने पावरफुल होते हैं कि साइंटिस्ट ने भी ये कैलकुलेट किया है, ये हमें एक कैलकुलेशन दी है कि एक साइक्लोन में इतनी पावर होती है जितनी के जितनी के एक न्यूक्लियर बॉम्ब में 500,000 ऑफ अ वन न्यूक्लियर बॉम्ब. ओके, नाउ दिस इज़ एन इमेज ऑफ द ग्लोब. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, सेंटर में हमारे पास इक्वेटर की लाइन है, जितना भी हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है नदर्न हेमिस्फेयर, दिस इज़ नदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारे पास, दिस इज़ द सदर्न हेमिस्फेयर. तो जिस वक्त साइक्लोन्स बनते हैं तो नदर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास जो है तो क्या होता है? विंड्स की जो डायरेक्शन होती है दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड जो है तो वो स्पिन करती है. दिस इज़ अनदर इमेज. ये आपके लिए एक और इमेज है. ठीक है, ये आपको गोल जो है तो स्पिन करती हुई एयर नज़र आ रही होगी. ठीक है, एंड दिस डायरेक्शन इज़ एंटी क्लॉक डायरेक्शन. देखें ये एरोस जो हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन है. ठीक है, जब इसी तरह विंड में जो है तो क्लॉकवाइज का जो होगी डायरेक्शन जो होगी ना, तो वो ऑपोजिट एरोज होंगे. Now the cyclones are smaller than the anticyclones. अब cyclones जो होते हैं तो वो anticyclones से जो होते हैं तो वो छोटे होते हैं. ठीक है, but the wind speeds are much stronger. In the center of the cyclone, the wind speeds are much less. Cyclones mean bad stormy weather with a lot of rain. ठीक है, अब साइक्लोन्स जो होते हैं वो एंटी साइक्लोन से ज़्यादा जो है तो वो साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन द एंटी साइक्लोन्स. ठीक है, साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन से छोटे होते हैं, बट द विंड स्पीड, लेकिन इसमें क्या होती है? विंड की जो स्पीड होती है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है देन द एंटी साइक्लोन्स. इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, जब जिस वक्त ये साइक्लोन बनते हैं तो सेंटर में हमें बिल्कुल एक आई की शेप नज़र आती है. ठीक है, द विंड स्पीड्स आर मच लेस, लेकिन क्या होता है? विंड की स्पीड जो होती है वो कम होती है. साइक्लोन्स मीन बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन. ठीक है, साइक्लोन्स का क्या मतलब है कि साइक्लोन्स जब आते हैं तो बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन. ठीक है, तो मौसम ख़राब होता है. ख़राब ऐसे होता है, क्या होता है कि यहाँ पे स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, तूफ़ान आते हैं और बहुत ज़्यादा रेन होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. एक्चुअली साइक्लोन्स जो होते हैं वो बनते ही ओशंस में हैं, सीज़ में हैं. ठीक है, वी आर हैविंग द इंडियन ओशन. ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं स्पेशली हमारे पास इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में बनते हैं, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एरियाज़ नियर बाय.
ओके, हेयर वी आर हैविंग अनदर इमेज, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने एक और इमेज लगाया है कि नदर्न हेमिस्फेयर में विंड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फेयर में जो है तो विंड की डायरेक्शन व्हेन द साइक्लोन्स अकर, ओके, क्या होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। नाउ सम पार्ट्स ऑफ द साउथ एशिया आर अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे हिस्से हैं साउथ एशिया में स्पेशली जो कि अफेक्ट होते हैं साइक्लोन्स से। नाउ दे आर द बे ऑफ बंगाल एंड द कोस्टल एरियाज अराउंड इट। द बे ऑफ बंगाल एंड द कोस्टल एरिया, ठीक है। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? कोस्टल एरियाज होते हैं जो कि साहिल समंदर के पास होते हैं, ठीक है, जो कोस्ट के साथ होते हैं। दे आर नोन एज द कोस्टल एरियाज अराउंड इट, ओके। डाउन टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और कौन सा एरिया है हमारे पास? वेस्टर्न कोस्ट। इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। आर द साइक्लोन अफेक्टेड रीजन, ठीक है। दीज आर द साइक्लोन अफेक्टेड रीजन ऑफ द of South Asia. बांग्लादेश इज़ पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, ठीक है। बांग्लादेश जो है तो स्पेशली अफेक्ट होता है साइक्लोन से, बिकॉज जो इसकी जो लेवल है इट इज़ नियर टू द सी, ठीक है। ये बिल्कुल जो है तो साहिल समंदर के साथ है, ठीक है, विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। यही वजह है कि यहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते हैं, साइक्लोन ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होती है। यू कैन सी हेयर इन द मैप, ये आपको मैप में है हमारे पास, ये बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हैं, ठीक है। हेयर वी आर हैविंग द बे ऑफ बंगाल और जितने भी इसके साथ जितने भी कोस्टल एरियाज लगते हैं दे आर अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स, ओके, इन द साउथ एशिया। अब इंडियन ओशन भी आपको नीचे नज़र आ रहा है और ये जो है तो इंडिया का भी आपको सदर्न टिप नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ के जो एरियाज़ हैं दे आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स। Dear students, hopefully you people have understood today's lecture. We will continue this chapter in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.